Hello students, in last video we have learned 2.4 an epitome of courage. Today we will discuss about the English workshop of this lesson. See, this all we have finished in the last video. Today this English workshop we are going to discuss. Match the following. Galileo. Second one is Dr. Stephen Hawking. Black holes, Stephen's favorite subjects. You have to match the information given in group B. So Galileo, the greatest scientist of greatest scientist 300 years before Hawking. That B is correct there. Then Dr. Stephen Hawking, the greatest scientist of this century. C is correct. Black holes, the concept which helped Stephen to get his PhD. In this subject, he has done his PhD. Then Stephen's favorite subjects, music and mathematics. Thus, B is correct. 4 is B. 3 is A. Like that, you have to match these sentences. Then second one is complete the following web chart containing the qualities of Dr. Stephen Hawking. What are the qualities of Stephen Hawking? Qualities of Stephen Hawking. He was very humble. He was also very intelligent, optimistic, not pessimistic. यानी सकारात्मक विचार वाले. Optimistic का मतलब सकारात्मक विचार. Then courageous. Courageous यानी साहसी या धैर्यशाली ऐसे. Undaunted. Great author. Author का मतलब होता है लेखक. ये सभी लिखना है. Next, arrange the following sentences according to the occurrence in the life history of Dr. Stephen. ये क्रम लगाना है. Ordering या keep in sequence. Sequence और ordering दोनों एक ही होता है. तो इधर ordering दिया है, तो उनके लाइफ में ये घटनाएं कब कब घटी है, कौन सी घटना पहली घटी है, उसके अनुसार तुम इनको क्रम लगाना है. तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? डी का सेंटेंस आएगा. स्टीफन वॉज बोर्न ऑन 8 जनवरी 1942 एंड देन ग्रू अप लाइक एन एवरेज चाइल्ड एंड ए नॉर्मल टीनेजर. सेकेंड में क्या आएगा? ये एट द एज ऑफ 17 स्टीफन नोटिस्ड दैट he fell down a couple of times for no reason. Then 3 में क्या आएगा? G. Stephen was diagnosed with a rare disease, ALS or LOU. Then fourth is F. Stephen decided to continue his doctoral research work with renewed vigor. ये F आएगा. Fifth, E. Either the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. E. Sixth, H. Though confined to a wheelchair, he worked on computer and expressed his thoughts. Then seventh, B. He became a fellow of the Royal Society and member of the US National Academy of Science. Then eighth, C. He believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe. तो ये क्रम लगाया गया है, तो इसके अनुसार तुम अपने नोटबुक में फिर से ऐसे क्रम लगाकर पहले सेंटेंस कौन सा लिखोगे? डी वाला पहले लिखोगे, सेकंड में ये लिखोगे. ऐसे क्रम से तुम्हारे नोटबुक में ये लिख के रखो. देन होमोग्राफ्स. अभी होमोग्राफ्स का मतलब होता है pairs of words that are spelled and pronounced the same but have different meanings in different contexts. देखो, ये होमोग्राफ्स क्या होते हैं? उच्चारण समान होता है
मगर स्पेलिंग भी समान है और उनका अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वॉच, वॉच यानी ऑब्जर्व करना या निरीक्षण करना। दूसरा वॉच है डिवाइस, तुम जो रिस्ट पर पहनते हो, रिस्ट वॉच जिनको कहते हो, टाइम देखने के लिए जो होता है वो एक डिवाइस है। तो वॉच यानी निरीक्षण करना या देखना, ये वॉच भी हो सकता है। आई वॉच टीवी, है ना, इस तरह से। देन ये वॉच जो है टाइम देखने के लिए है। तो इस तरह से दोनों का उच्चारण भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मगर अलग अलग संदर्भ में उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया है, तो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कपल, आई हैड ए कपल ऑफ बुक्स टू फिनिश। कपल ऑफ बुक्स है ने दो, एक कपल है ने दो, कपल ऑफ बुक्स है ने दो बुक्स मेरे पास है। और वही दूसरे संदर्भ में कैसे होता है, द एल्डरली कपल वॉज टेकिंग ए वॉक इन द पार्क। यहाँ पर भी दो ही मीनिंग हो रहा है, तो ये अलग संदर्भ में इसका उपयोग किया है। माइंड, डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑन द फैन। माइंड का मतलब तुम्हें कोई एतराज है क्या मैं अगर फैन चालू करता हूं तो, माइंड यहाँ पर। अभी यहाँ पर ही हैड ए लॉट ऑफ प्लान्स इन हीज माइंड, यहाँ पर माइंड का अर्थ होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में कई विचार है। यहाँ पर माइंड ये मस्तिष्क के लिए उपयोग किया है। यहाँ पर माइंड जो है ये कोई एतराज, इस तरह से उसका उपयोग हुआ है। देन स्पेस, ही वॉज कंफर्टेबल इन हीज ओन स्पेस, अपनी जगह पर वो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है ना, सुविधाजनक है, वो जिधर बैठा है वो उसके लिए सुविधाजनक है। यहाँ पर स्पेस दूसरा अर्थ उसको देने वाला स्पेस को अर्थ दिया है, आई विश आई कुड ट्रेवल इन स्पेस। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार स्पेस में यात्रा करूं। स्पेस है ने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में मैं एक बार सफर करूं या यात्रा करूं। ये स्पेस और ये स्पेस का अर्थ होता है जगह और ये स्पेस का अर्थ होता है अंतरिक्ष। देन साउंड, ही हैड ए साउंड स्लीप, यानी बहुत ही शांत, साउंड स्लीप, वो आराम से सो रहा था ऐसे। आई हर्ड द साउंड ऑफ क्रैकर्स, यहाँ पर साउंड है आवाज, है ना, तो देखो कितना विपरीत अर्थ है इसका। ही हैड ए साउंड स्लीप, ये शांत सो रहा है, और यहाँ पर है आई हैड द साउंड ऑफ क्रैकर्स, साउंड है ना आवाज, क्रैकर्स है ने फटाके। लेफ्ट, द स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट ये डायरेक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट राइट इस तरह से डायरेक्शन है। एंड शी हैड नो चॉकलेट्स लेफ्ट, यहाँ पर उसके पास चॉकलेट्स नहीं बचे। नो, लीव लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस यहाँ पर लेफ्ट है, लीव का मतलब रह जाना, और यहाँ पर नहीं रहे। शी हैड नो चॉकलेट्स लेफ्ट है ना, उसके पास चॉकलेट्स नहीं बचे, ये अर्थ देने वाला है। इस तरह से सेम स्पेलिंग, सेम उच्चारण, मगर उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो in your notebook make pairs of sentences with any 3 of the above homographs, हमने सभी बना दिया है, तो ये लिख कर लो और परीक्षा में आए करना पड़ेगा। use the following words phrases in your own sentences. quirk of fate, quirk यानी दुर्भाग्य से, देखो by quirk of fate he lost all his money, हाँ? दुर्भाग्य से वह अपने सारा मनी पैसे खो दिए। Then confined to, my neighbor is confined to bed from a long time with paralysis. Confined to यानी उसी पे चिपक जाना या लग जा, यानी उसी पर पड़े रहना, इस तरह से। अभी डॉक्टर हॉकिंग का वॉज कन्फाइंड टू व्हील चेयर जैसे कहा था, ऐसे ही माई नेबर इज कन्फाइंड टू बेड फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम विथ पैरालिसिस, पैरालिसिस होने के कारण मेरे पड़ोसी बेड पर ही रह गए, यानी वो बेड पर ही रहते हैं, यानी नीचे नहीं उतर सकते, है ना।
बेड पर ही पड़े रहते हैं, इस तरह से। एग्जैजरेशन, ही टोल्ड द स्ट्रेंज न्यूज विदाउट एनी एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब तुम लोगों को समझाया था, अतिशयोक्ति या बहुत अधिक उत्साह, है ना, से, है ना, उसकी ये एक भावना है ना, तो उसमें कोई उत्कंठा या इस प्रकार के एग्जैगरेशन उसमें नहीं थी। एन एपिटोम ऑफ, ए नाइस एग्जाम्पल ऑफ, एपिटोम का मतलब नाइस एग्जाम्पल ऑफ, द चैंपियन क्रिकेटर इज एन एपिटोम ऑफ मॉडेस्टी। इस तरह से उसका उपयोग तुम कर सकते हो। मिलेनियम, द मैनकाइंड विल ड्वेल ऑन अदर प्लैनेट्स, ड्वेल का मतलब है निवास करना, जाकर वहां पर निवास कर सकते हैं, ऑन अदर प्लैनेट्स बिफोर द नेक्स्ट मिलेनियम। तो इधर स्पेलिंग ये हो गया, इन सही है, मगर ये सेमी कोलन जो है ये बीच में आया है, इसको हटाकर तुम लिख कर लो मिलेनियम। तो द मैनकाइंड विल ड्वेल ऑन अदर प्लैनेट्स बिफोर द नेक्स्ट मिलेनियम, आगे आने वाले मिलेनियम से पहले ये मनुष्य दूसरे अन्य ग्रहों पर जाकर निवास करेगा, इस तरह से। अभी देखो लैंग्वेज स्टडी, ये ग्रामर सेक्शन है, और ये तुम लोगों को 2 मार्क के लिए वर्ड चेन आता है, पहले ही सेक्शन में आता है। देखो 10 मार्क के लिए तुम्हारा ये जो लैंग्वेज स्टडी होती है, हर क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन यही होता है, उसमें एक ये भी है वर्ड चेन, इसको तुम लोगों को 2 मार्क है परीक्षा में, तो इधर 3-4, और वहां पर जो उदाहरण के तौर पर दिया गया है, यहाँ पर तो क्लियरली दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स, वो ही एडजेक्टिव शब्द का ही उपयोग तुम्हें वहां पर वर्ड चेन पूरा करने के लिए करना है। तो यहाँ पर क्रूएल ये एडजेक्टिव है, he was a cruel man, क्रूएल यानी दुष्ट, है ना। इसी तरह से अभी लविंग, ये प्यारा, इसका विरोधार्थी हो सकता है ये, मगर विरोधार्थी तुम्हें नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या है, लास्ट में जो अक्षर आया है, अल्फाबेट आया है यल, क्रूएल का यल से अंत हो रहा है, अंत्याक्षरी तुम कहते हो जैसे वैसे, यल से तुम्हें नया कोई एडजेक्टिव शब्द वहां पर लिखना है। लविंग, यहाँ पर जी लास्ट में आया, जेनरस दयालु, है ना, तो इस तरह से यस आया, स्ट्रेंज, और ई आया एक्सेलेंट, ये सभी एडजेक्टिव वर्ड्स है। एडजेक्टिव वर्ड्स का ही उपयोग करना है, सिर्फ रिलेटेड वर्ड्स नहीं है, ये ध्यान में रखना है, बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ। उधर जो दिया गया है, अभी कंप्लीट द वेब भी आता है, देखो कभी कभी 2 मार्क के लिए, वो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर वर्ब दिया है तो सारे अन्य शब्द भी वर्ब होने चाहिए, और नाउन दिया है तो नाउन होने चाहिए, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसे ही लिखना है तभी मार्क मिलते हैं। अभी दूसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, यहाँ पर नाउन्स लिखना है, नाउन है ना नाम, कोई भी नाम है ना, कोई चीजों के नाम, कोई एनिमल्स के नाम, ये कोई भी स्थान का नाम भी तुम लिख सकते हो। यहाँ पर देखो मेडिसिन, एलिफेंट, ई से ई से खत्म हुआ है तो एलिफेंट, टी से खत्म हुआ है टी, टी ये से खत्म हुआ है एनिमल, यल से खत्म हुआ है लॉफ्टर, ये सभी नाउन फॉर्म्स है, ये भी लॉफ्टर भी नाउन फॉर्म है। तो ये बाकी सभी एनिमल के नाम है, और ये टी ये कोई चीज है या पेय है, इस तरह से। देन कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन है, इधर जी एक्स्ट्रा टाइप हुआ है, कट करो उसको, ऑफ वर्ब्स। ग्रो, ग्रो यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर वर्ब्स से दिया है ना, टू ग्रो है ना बढ़ना, टू वरी चिंता करना, वाई से यल, येलिंग है ना जोर से चीखना चिल्लाना, देन यल से फिर से लाइक, लाइकिंग, आई लाइक, है ना, लाइक ये वर्ब है, ई से एंटर प्रवेश करना, इस तरह से ये सभी वर्ब है, वर्ब वर्ड्स है। अब ऐसे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन एनी वे, एनी वे यानी किसी भी तरह से, है ना, जो चाहिए वो वर्ड तुम लिख सकते हो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये नहीं दिया है, यहाँ जैसे इधर एडजेक्टिव दिया है, इधर नाउन दिया है, इधर वर्ब दिया है, यहाँ पर एनी वर्ड यू कैन राइट, है ना। इसीलिए फिजिक्स दिया है तो स्पेस,
ई से खत्म हो रहा है तो L1 लिखा, N से खत्म हो रहा है तो नीट, T से खत्म हो रहा है तो टैलेंट। यहाँ पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ड लिखो ऐसा कहा है। एनी वे का मतलब कोई भी वर्ड। आगे देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ द सेम मीनिंग। देखो, वाक्य का अर्थ न बदलते हुए तुम्हें ये जो दिया गया वाक्य है ये स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको तुम्हें एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ अथवा व्हाट से शुरू होते हैं और इसका वर्ब अंत में आता है, कभी कभी वो होता भी नहीं है। सहायकारी क्रियापद इसमें जो स्टेटमेंट में है वही लास्ट में आता है, मगर कभी कभी ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। फिर एक्सक्लेमेटरी इसको कैसे करोगे? डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। व्हाट ए हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज। वॉज भी लिख सकते, इधर इज दिया है इसीलिए इज, मगर ही इज नो मोर, अभी तो वो नहीं है, वो स्टोरी में है। स्टोरी नॉर्मली क्या होते हैं? पास्ट टेंस में होते हैं। वो आज होना चाहिए था मगर इधर इज दिया है तो हमने भी इज लिखा है ना। ही वॉज वेरी क्लमजी, हाउ क्लमजी ही वॉज, इस तरह से तुम्हें कंप्लीट करना है। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज। पहले हाउ से शुरू होता है, हाउ और अथवा व्हाट से शुरू होता है और बाकी सभी शब्द पहले आते हैं और बाद में वो कर्ता आता है और उसके बाद क्रियापद आता है। इस तरह से इनकी रचना करना है। करेज इज ए ट्रूली वंडरफुल थिंग, व्हाट ए वंडरफुल थिंग करेज इज, है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। ये 8वीं में भी तुम्हें हो गया था। तो वो थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास बुक्स है तो या ग्रामर बुक्स है तो रेफर करो, थोड़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ो और इसके बाद थोड़ा सा बहुत समझ में आएगा। और प्रैक्टिस पर भी बहुत निर्भर करता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ग्रामर के लिए। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड, ये देखो इधर क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, इनके ऊपर एक क्वेश्चन तैयार करना है, इनके लिए ये जवाब है, तुम्हें प्रश्न तैयार करना है। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड, हाउ वॉज प्रोग्नोसिस, इसका उत्तर ये है ना। हाउ वॉज प्रोग्नोसिस, द प्रोग्नोसिस वॉज बैड। देन Stephen decided to continue his research. What did Stephen decide? Did पहले लिया है इसलिए इधर decided नहीं आएगा, decide आएगा, है ना। तो what did Stephen decide? Stephen decided to continue his research. ये इसका जवाब, प्रश्न तुम्हें तैयार करना है। There are many people who display exemplary courage. What do many people display? इसका जवाब ये है ना। देर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले exemplary courage। नेक्स्ट, his mind would soar up into space like light. How would his mind soar up into space like a light, इसका जवाब है, मगर ये पूरा वाक्य में तुम्हें लिखना है। इस तरह से ये खत्म होता है और ये सभी तुम लोग अपने नोटबुक में लिख के रखो। और मैंने अभी पीछे कल या परसों तुम लोगों को एक राइटिंग स्किल का ये दिया भेजा है, उसमें अलग अलग प्रकार के राइटिंग स्किल्स है, लेटर राइटिंग है, कॉन्वर्सेशन है, वो सभी के बारे में थोड़ा अध्ययन करो, क्योंकि पढ़ाई करो, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम में वो सभी आने वाले हैं। यानी वही नहीं आएंगे, मगर एक प्रैक्टिस के लिए मैंने भेजा है। कम से कम एक एक प्रकार के तुम लोग देख के रखो और इसमें तुम्हें परीक्षा में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।